See, so in previous chapter, we have discussed de Broglie concept of matter waves, right? या basically de Broglie waves या matter waves के बारे में पढ़ा था हमने, right? Where we have discussed that any particle moving with some velocity, has some mass, moving with some velocity v, has a wave character which is wavelength of which is given by h by mv, right? तो एक पार्टिकल है जो मूव करता है, तो we can associate it with a wave. We call it de Broglie wave or matter wave. We have discussed a lot of questions on it. Now, next, and a very complicated concept is Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle बहुत मुश्किल से समझ में आता है. Heisenberg's uncertainty principle is a really complicated topic. So let's try to understand what is Heisenberg's uncertainty principle. Okay. See, there are two words which you have to understand. One is position and other is momentum. Position and momentum. Right. See, I'll say larger objects, macroscopic objects. For larger objects, macroscopic objects, it is easy for us to determine its position as well as momentum. Yeah. एक बड़ा object है, ठीक है? Maybe there's a road, straight highway है, there's a motorcyclist which is moving with a constant speed of 5 meters per second, right? And at t equals to 0, it crossed, say, x equals to 100 meter on 100 meter mark. So if someone says what is its momentum and position at t equals to 5 seconds, so I can clearly state if mass is 100 kg, so momentum I'll say is 500 kg meter per second, and अगर कोई मुझसे position पूछेगा तो 5 seconds के बाद 125 meter पे होगा, right? For macroscopic objects, it is easy to pinpoint the position as well as momentum, to find the momentum simultaneously. नहीं समझा? इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है. तो भाई हमारी पुरानी चीजें हमने काइनेमेटिक्स में भी खूब पढ़ा, फिजिक्स में अलग अलग टाइम पे आपको पोजीशन भी मिल जाती है, वेलोसिटी पता है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, पार्टिकल है, मतलब मास पता है, तो यू नो द मोमेंटम, राइट? बेटा ये टॉपिक में प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहना, नहीं तो बिल्कुल समझाने में मजा नहीं आएगा. यस सर. हाँ, सो फॉर अ पार्टिकल, सॉरी, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक बाइक है, कार है, ऐसी चीजों के लिए इट इज इजी टू पिन पॉइंट द पोजिशन एज वेल एज टू फाइंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली. हमने कभी इसमें डाउट नहीं किया, हमको ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं ये चीज नहीं कर सकता. इसमें हमने कभी डाउट नहीं किया कि हम ये काम नहीं कर सकते, कि एक कार जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, मैं उसकी पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकता. वी कैन ऑलवेज डू इट, बट थिंग्स विथ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, इन सब चीजों के लिए कहानी थोड़ी सी और होती, राइट? वो एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन आप लाओगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाके उसको बोला बैठ जा तो वो बैठ जाएगा, राइट? It will keep on moving here and there, right? It will keep on moving here and there. And आप अब ध्यान से सुनना, आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीज साइमल्टेनियसली नहीं पता कर सकते. जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया ना, t equals to 5 seconds, उसका मोमेंटम 500 kg meter per second and position 125 meter. For an electron, you cannot confirm its position as well as momentum simultaneously. Momentum simultaneously.
राइट? तो इट्स समथिंग लाइक, अगर आपने कैमरा होता आपके पास तो आप उसकी फोटो अगर खींच पाते तो आप उसकी पोजीशन तो बता पाते, बट मोमेंटम तो फिर भी नहीं बता पाते, राइट? आ रही बात समझ में? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. व्हाट डज इट सेज? इट सेज for a microscopic particles or small particles, not only small particles, it is applicable for all, but चलो उसको बाद में डिस्कस करता हूँ. So for any particle it is impossible to find position as well as momentum with 100% accuracy. That means if there is a particle whose momentum and position is to be measured, we can do only with certain uncertainty. कुछ uncertainty रहेगी ही रहेगी, परफेक्ट चीज आप नहीं निकाल सकते. दोनों चीजें, क्या? पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों एक साथ आप नहीं निकाल सकते. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसा हुआ क्या. तो बिफोर वी टेक अप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लेट अस डिस्कस पार्टिकल नेचर. We already discussed it twice. Particle nature and wave nature. What distinguishes particle nature and wave nature? कोई भी चीज पार्टिकल है या कोई भी चीज वेव है. अब तो हमने सब देख लिया कि हर चीज पार्टिकल भी है, हर चीज वेव भी है. तो आई कैन स्टेट पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. पार्टिकल की तरह बिहेव करना मतलब क्या होता है? See, if I talk of a particle, suppose this is x-axis, and if I have captured a particle at x equals to 5 at any instant in my camera, right? At t is equal to 3 seconds, x equals to 5. So, can this particle be present anywhere else at the same time? Suppose करो एक particle है जो मैंने t equals to 3 seconds पे x equals to 5 पे पिन पॉइंट किया, मैंने फोटो खींची, कुछ भी किया, जैसे भी. So can this particle be present anywhere else at t equals to 3 seconds? No, sir. इसीलिए वो पार्टिकल है, राइट? पार्टिकल 3 सेकंड्स पे यहाँ पे है, दैट मीन्स वो यहीं पे होगा, राइट? और कहीं नहीं हो सकता. अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल वर्सेस एक्स कोऑर्डिनेट ग्राफ बनाता तो ग्राफ कैसा दिखता था? ग्राफ वुड बी अ स्पाइक, 100% प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 5 पे है, बाकी हर जगह पे 0 0 0 0 0, बाकी कहीं पे उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, राइट? वापस बोलूं क्या बोला मैंने? सी, एक पार्टिकल है जो x इक्वल्स टू 5 पे है. अगर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाऊं तो उसमें क्या आएगा? x इक्वल्स टू 5 पे 100% दिखाएगा, बाकी सब जगह पे 0. यहां भी होगा कुछ प्रोबेबिलिटी मिलने का. हेलो सर, वो जिस पोजीशन पे वहीं पे 100% प्रोबेबिलिटी. हाँ, बाकी कहीं मिलने का तो चांस ही नहीं है ना, बाकी सब जगह प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 रहेगी, राइट? यस सर. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अ वेव. एक वेव उठा के देखते हैं हम लोग. वेव नेचर होना मतलब क्या है? व्हेन आई से वेव नेचर, तो वेव इज अ स्प्रेड. वेव इज नॉट अ मतलब एक पार्टिकल की तरह नहीं होता. वेव का नेचर कैसा रहता है? एक स्प्रेड होता है वो, राइट? अगर आप रिपल्स देखोगे, एक वाटर पूल है, उसमें एक रिपल प्रोड्यूस करोगे तो वो रिपल स्प्रेड होता है. ऐसा नहीं कि वहां जहां पत्थर गिरा वहीं पे रिपल है, राइट? तो वेव इज व्हाट? वेव इज अ spread. Even if you talk of stationary wave, as I said in previous examples, then even this is a spread. वो यहाँ से यहाँ तक spread है, right? Yes. Can you say that wave is present here only? No, या wave is present here only? नहीं. ये wave तो simultaneously बहुत सारे points पे है ना, तो बहुत सारे points पे इसके मिलने का probability है.
इवन इफ इट इज अ स्टेशनरी वेव, तो अगर मैं ये एक्स एक्सिस के एक पार्ट में स्टेशनरी वेव भी होता था, इवन इफ इट इज स्टेशनरी, इट इज नॉट मूविंग, देन ऑल्सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्सेस एक्स अगर मैं प्लॉट करता था तो यहाँ से यहाँ तक कुछ प्रोबेबिलिटी होती थी। हाँ ठीक है, इसके बाहर जीरो है प्रोबेबिलिटी, स्टेशनरी वेव है तो इसके बाहर नहीं हो, बट इसके अंदर तो मिलने का चांस है ना इसका वेव का। तो प्रोबेबिलिटी वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू कैन नॉट से कि देयर विल बी अ स्पाइक एट वन पॉइंट और बाकी सारे पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी जीरो है। Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. सो पार्टिकल नेचर मतलब में आप उसकी पोजीशन एग्जैक्टली बता सकते हो कि वो यहाँ पे है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल वर्सेस पोजीशन अगर निकाला जाए तो आप ग्राफ जो होगा वो एक ही पॉइंट पे फुल 100% प्रोबेबिलिटी दिखाएगा, बाकी सारे पॉइंट हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू वुड बी जीरो। वेयर इफ यू हैव अ वेव, वेव इज अ स्प्रेड, उसका एक जगह से दूसरी जगह रेंज रहेगा। हाँ, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, इसके बाहर नहीं होगा, राइट? बड़ा बुरा सा एग्जांपल है बट ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ। देयर इज अ स्टोन, एक माइलस्टोन है, तो माइलस्टोन यही रहने वाला है। रोड पे एक माइलस्टोन लगा हुआ, कोई मुझसे पूछेगा कि 3 बजे माइलस्टोन कहाँ हुआ? अरे वहीं पे था, जहां पे है वहीं पे रहेगा माइलस्टोन, राइट? बट एज अ चाइल्ड सपोज आपके घर में 3-4 रूम है, 3-4 रूम है, राइट? यहाँ एक रूम है, यहाँ एक रूम है, रूम्स है अलग अलग, राइट? ये आपका लिविंग रूम है, ये आपका बेडरूम है, ये आपका डाइनिंग रूम है, राइट? आप हर रूम में कभी कभी हो सकते हो, ठीक है? आप रात को 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, बट यहां भी हो सकते हो, यहां भी हो सकते हो, यहां भी हो सकते हो, राइट? तो आपकी पोजीशन तो चेंज हो सकती है ना। तो आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी मैं बता सकता हूं कि हाँ 12 बज रहे हैं तो बेडरूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट? 9 बज रहे हैं दैट मींस डाइनिंग रूम में मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी देयर ओनली, राइट? Yes, sir. वैसे ही भाई वेव है, वेव स्प्रेड है, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत सारी जगहों पे बनी हुई है। पार्टिकल है, लॉग है, यहाँ पे है मतलब यहीं पे, जैसे माइलस्टोन, माइलस्टोन यहीं पे है मतलब यहीं पे, उसके इधर उधर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं, ठीक है? तो अब वेव है, तो वेव का आप क्या क्या स्टडी कर सकते हो? वेव की कौन सी प्रॉपर्टीज? अगर वेव का पैटर्न आपको मिल जाए तो यू कैन मेजर वेवलेंथ, राइट? यू कैन मेजर फ्रीक्वेंसी, Frequency, amplitude. right? Amplitude you can measure, but can you pinpoint its position? Is it No, possible for you to pinpoint its position? no. आप कभी पोजीशन नहीं बता सकते इसकी, राइट? तो यू कैन नॉट पिनपॉइंट इट्स पोजीशन, राइट? तो पार्टिकल की पोजीशन आप एग्जैक्टली बता सकते हो, वेवलेंथ की वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड बता सकते हो, बट यू कैन नॉट टेल द पोजीशन, राइट? अब देखो, वेव का वेवलेंथ पता है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम पता है। डुअल नेचर ऑफ वेव में पढ़ा तुमने? डुअल नेचर ऑफ वेव में पढ़ा था हमने। अगर वेवलेंथ पता है लैम्डा, तो मोमेंटम ऑफ द करस्पॉन्डिंग पार्टिकल इज h by लैम्डा, याद है? यस सर। यस। तो अब मैं एक स्टेटमेंट पे उतर के आता हूं कि पार्टिकल है so you can clearly find its position but you cannot find its momentum, not for large particles, but for small particles. इलेक्ट्रॉन का आप मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे, पोजीशन आप एक बार पिन पॉइंट कर सकते हो। यू हैव अ बेटर कैमरा, आप उसका फोटो खींचोगे तो कहीं वो मिल जाएगा। तो मोमेंटम यू कैन नॉट मेजर, वेव की पोजीशन यू कैन नॉट डिटरमाइन, बट मोमेंटम यू कैन डिटरमाइन,
Yes, sir. पक्का समझ में आ गया स्टेटमेंट? ठीक है, अब देखो, तो मुझे अगर किसी की पोजीशन भी चाहिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्पेशली पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम, दोनों अगर मुझे मेजर करना है तो मुझे दोनों कॉन्सेप्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। एक ऐसा पार्टिकल सोचना पड़ेगा आपको जो पार्टिकल नेचर भी दिखाए, जो मुझे पोजीशन दे देगा, राइट, एज वेल एज वेव नेचर भी आपका लेके चलना पड़ेगा। उससे आपको क्या मिल जाएगा? लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा मिल जाएगा तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा। करेक्ट? हेलो? Yes, sir. तो अब ये कैसे बनाया? तो हाउ इट इज डन? सी, सपोज देयर इज अ वेव ऑफ सम फ्रीक्वेंसी, राइट? अभी ये तो पूरे रीजन में स्प्रेड है, ठीक है? लेट मी सुपर इम्पोज इट विथ अनदर वेव। लेट मी सुपर इम्पोज इट विथ अनदर वेव। ऐसा सुपर इम्पोज कर दिया, राइट? तो जो रिजल्टिंग वेव होगा उसमें कई पॉइंट्स पे देखो क्या होगा। जैसे यहां पे देख लो, दोनों के एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाएंगे, राइट? यहां पे देख लो, मतलब ये तो मैंने फिगर ऐसे रफ बन गया, तो जैसे यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, राइट? यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। तो कई जगह पे एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाएंगे और कई जगह पे एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे, नहीं? एग्री टू दिस? जैसे इस पॉइंट पे देखो, मुझे दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा, ऐसे रफ स्केच बना दिया मैंने, बट यस आप समझ सकते हो। यहाँ पे कैंसिल होता दिख रहा है, यहाँ पे कैंसिल होता दिख रहा है, यहाँ पे कैंसिल होता दिख रहा है, फिर यहाँ पे कैंसिल होता दिख रहा है। तो कुछ जगहों पे कैंसिल होता दिख रहा है, कुछ जगहों पे बचते हुए दिख रहा है, राइट? ठीक है, तो शायद कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा, कुछ ऐसी वेव मिल जाए। कुछ जगहों पे एम्पलीट्यूड कैंसिल हो गए, कुछ जगहों पे बच गए, राइट? नहीं समझा? समझिए सर। ओके, अब एज्यूम करो एक और ऐसी सिमिलर वेव और सुपर इम्पोज कर दी, जिसकी फ्रीक्वेंसी फिर से अलग थी, ऐसा ऐसे थी। अब इनके सुपरपोजिशन से फिर कहीं कहीं पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और कहीं कहीं पे क्या हो जाएंगे? वेव बच जाएगी। तो you might get a region, space where the points where wave exists is more, the region where the wave exists is less as compared to the region where the wave does not exist. यहाँ पे वेव नहीं है, यहाँ पे वेव नहीं है, यहाँ पे वेव नहीं है, राइट? और एक वेव ऐड कर दो तो क्या होगा? फिर से और छोटे छोटे रीजन बन जाएंगे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी वेव्स को अगर सुपर इम्पोज कर दो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दैट थिंग इज confined in a small space। करते करते पहले क्या था, पूरे रीजन में स्प्रेड है, अब वो जो रीजन जिसमें वेव नहीं है वो बड़ा होता जा रहा है और जिसमें वेव है वो छोटा होता जा रहा है। तो बहुत सारी वेव्स अगर मैं मिला दूं तो आई कैन से कि आई विल गेट अ स्मॉल रीजन इन विच ऑल दीज वेव्स टुगेदर एग्जिस्ट। कैसा बोल सकता हूं? हाँ सर। यस, इसको बोलते हैं क्वांटम ऑब्जेक्ट, विच इज एक्चुअली वेव पैकेट। ये वेव पैकेट है, बहुत सारी वेव्स को मिला के मैंने बनाया है। दिस इज वेव पैकेट, इसी को बोलते हैं क्वांटम ऑब्जेक्ट, राइट? अब मजे की चीज यहाँ, ये एक ऑब्जेक्ट अगर मैं मान लूं तो मुझे एक पोजीशन तो दिख रही है, आई कैन सी। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं पूरा इन्फिनाइट में स्प्रेड हो रहा है, यहाँ से वहां तक कहीं भी वेव है, राइट? आई विल गेट अ स्मॉल रीजन इन विच इट इज लोकेटेड। तो ये मेरा क्वांटम ऑब्जेक्ट हो गया। इट इज बेसिकली वेव पैकेट, वी कॉल इट क्वांटम ऑब्जेक्ट, राइट? वेव पैकेट है क्वांटम ऑब्जेक्ट।
तो अब इसमें पोजीशन जैसी चीज थोड़ी लॉजिकल लग रही है आपको, थोड़ी, ज्यादा नहीं बट थोड़ी लॉजिकल लग रही है, राइट? Yes, sir. हाँ, और वेव है तो वेवलेंथ भी है, तो वेवलेंथ है तो मोमेंटम भी है, तो मोमेंटम भी आपको लॉजिकल लग रहा है। तो इस क्वांटम ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और पोजीशन दोनों आप सोच सकते हो, ठीक है? आप देखें, बट अभी भी प्रॉब्लम क्या है, इसमें सर्टेनिटी नहीं होगी, देयर विल बी 100% एक्यूरेसी। सर्टेनिटी एंड इन पोजीशन पॉसिबल है क्या? अभी भी तो आपको एक स्पेस ही बताया ना, इतने रीजन में, पहले तो बहुत फैला हुआ था, अब लेकिन इतने रीजन में कन्फाइंड है वो, तो भी 100% सर्टेनिटी है क्या? जैसे एकदम पिन पॉइंट मार सकते हो x=5 के लिए? कुछ एरर आएगा। हाँ, तो कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। सर्टेनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? अगर सर्टेनिटी पोजीशन में बढ़ानी है तो क्या करोगे आप? बोलो ना, यही पे लिखा हुआ है। और अगर मतलब चलो अभी तो इतना रेंज है, और रेंज कम करने के लिए, मतलब इतना दिख रहा है और कम करना है, तो क्या करोगे आप? और बहुत सारी वेव्स डालेंगे। और सारी वेव्स को आप उसमें पैकेट में डाल दोगे, राइट? तो और छोटा हो जाएगा, राइट? तो टू इंक्रीज certainty in position, we need to add more waves. We need to add more waves in the packet, right? In the packet. So ऐसा करने से क्वांटम ऑब्जेक्ट, इस क्वांटम ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम तो किससे आया था? वेव से आया था। अब बहुत सारी वेव्स हैं, तो बहुत सारी वेव्स हैं तो उसके पास मोमेंटम के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट? सिंस मोमेंटम ऑफ, यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सिंस मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, quantum object is from wave, object can have momenta of any of the superimposing wave, hence there is uncertainty in momentum। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है, पता नहीं आप समझ गए तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं पोजीशन लॉक करने गया तो उसके लिए क्या करना पड़ा मुझे? बहुत सारी वेव्स जोड़नी पड़ी। टू इंक्रीज सर्टेनिटी इन पोजीशन वी नीड टू ऐड मोर वेव्स इन द पैकेट। Now, since momentum of quantum object is from wave, E is equal to h by lambda। अब बहुत सारी वेव्स हैं, तो किसी भी वेव का कोई भी वेवलेंथ वो ले सकता है, तो कुछ भी मोमेंटम हो सकता है उसमें, तो it can have momenta of any of the superimposing wave, hence there is uncertainty, increase in uncertainty, there is increase in uncertainty of momentum। Yes, sir. क्या पक्का समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अगर कहीं गलती से आपको एकदम पॉइंट करना है तो कितनी वेव्स जोड़नी पड़ेंगी? इनफिनिट वेव्स जोड़नी पड़ेंगी। तो अनसर्टेनिटी, अगर मैंने मतलब इसमें सर्टेनिटी खत्म ही कर दी, अनसर्टेनिटी खत्म कर दी, मतलब एकदम ही पिन पॉइंट करना मुझे, तो आई विल हैव टू ऐड थ्योरेटिकली इनफिनिट वेव्स। तो इनफिनिट वेव्स ऐड करने के लिए मतलब मोमेंटम में क्या हो गया? इनफिनिट अनसर्टेनिटी हो गई, तो मोमेंटम तब गया, सत्यानाश हो गया। समझा? Yes, sir. गुड। अब जरा आप सर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ाओ। अब लिखूंगा नहीं, ऐसे बताओ। मोमेंटम में सर्टेनिटी चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा? मोमेंटम में सर्टेनिटी है, हाँ, कम वेव्स रखो आप। एक ही वेव रख दो तो पूरा ही मोमेंटम सर्टेन हो गया। इफ यू कीप ओनली वन वेव तो मोमेंटम सर्टेन है ना,
there is only one wavelength, so there is only one momentum. Hello. सब Yes. गायब हो गए। Yes, sir. तो अगर आप एक ही वेव रख दोगे, एक ही वेव है, तो फिर मोमेंटम आपका क्या हो गया, एकदम ही सर्टेन हो गया। लैम्डा, एक वेव का एक ही वेवलेंथ है, तो लैम्डा डाल दिया आपने तो पी आ गया, मोमेंटम सर्टेन हो गया। बट उसकी जो एक्सटेंड है वो